last class, we primarily described two types of chromosomal abnormalities or say disorders due to two types of abnormalities. First was autosomal aneuploidy and second was sex chromosomal aneuploidy. If you recall, in case of autosomal aneuploidy, we described which diseases? Down syndrome, Edwards syndrome and Tau's syndrome, where Down syndrome is 21st trisomy, Edwards syndrome is 18th trisomy and Tau's syndrome is 13th trisomy. While monosomy at sex chromosome, that is X0 condition, leads to Turner syndrome, and trisomy at sex chromosomal position, that is XXY condition, leads to Klinefelter's syndrome. Wherever there is a disorder due to an extra chromosome at some position, you call it trisomic disorder, and whenever there is some disease due to monosomy, you call it monosomic disorder. For example, Turner syndrome is a monosomic disorder, while Down syndrome is a trisomic disorder, right? Now, the next category of genetic disorders that we are moving on is a disorder that occur due to chromosomal aberrations. Just recall a thing, what is chromosomal aberration? We have described it in the previous classes that chromosomal aberration is a kind of gene mutation where there is a difference or change in the overall structure of a chromosome, right? In that we describe deletion, we describe duplication, inversion, translocation, etc. So here there are some diseases that occur due to chromosomal aberrations, a second kind of chromosomal variation or say chromosomal change that causes disorder is chromosomal aberration. It's not genomatic mutation disorder that you need to understand. Is it okay? The first disease that we are going to consider that occurs due to chromosomal aberration is Cry-du-Chat syndrome. ये नाम पहले भी गया है, जब हमने डिलीशन पढ़ा था तो इस डिसीज का एग्जाम्पल के तौर पे मेंशन हुआ है. क्यों होता है ये डिसीज? जस्ट हैव अ लुक. दिस डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू डिलीशन. नाउ हियर इज द रीजन. ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है कि क्राई-डू-चैट नाम का जो डिसीज है उसका रीजन है डिलीशन. डिलीशन इज अ काइंड ऑफ क्रोमोसोमल अबरेशन, राइट? जहां पे कौन से पर्टिकुलर क्रोमोसोम का डिलीशन होता है तो उस क्रोमोसोम का नंबर है 5. पूरी बात हम यहां पढ़े कि दिस डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू डिलीशन ऑफ हाफ पार्ट ऑफ शॉर्ट आर्म, जिसको हम स्मॉल p से इंडिकेट करते हैं. इफ यू रिमेंबर, शॉर्ट आर्म इज इंडिकेटेड बाय स्मॉल p, लॉन्ग आर्म इज इंडिकेटेड बाय स्मॉल q. तो शॉर्ट आर्म कौन से क्रोमोसोम का? क्रोमोसोम नंबर 5 का अगर डिलीट हो जाए तो उस वजह से कौन सी डिसीज की संभावना है, या कौन सा डिसीज होता है? क्राई-डू-चैट. अब इसका नाम क्राई-डू-चैट इसलिए है क्योंकि अफेक्टेड पर्सन हैज अ स्मॉल हेड एंड क्राइज लाइक अ म्यूइंग ऑफ कैट. ठीक है ना? रोते समय बिल्ली के म्यू जैसी आवाज आती है टिपिकली, इसीलिए इसे हम कहते हैं क्राई-डू-चैट सिंड्रोम. और इसका रीजन हमें याद रखना है, रीजन है डिलीशन. इस तरह का क्रोमोसोमल अबरेशन जो क्रोमोसोम नंबर 5 के शॉर्ट आर्म पे होता है, राइट? The another disease that occur due to chromosomal aberration in our consideration is myelogenous leukemia, जिसे माइलोजिनस ल्यूकेमिया कहते हैं. ये वाला जो डिसीज है इसका रीजन है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका रीजन है ट्रांसलोकेशन. अब याद करो कि जब हमने ट्रांसलोकेशन पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि ट्रांसलोकेशन जो है वो दो तरह का होता है, सिंपल ट्रांसलोकेशन और रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, राइट? अब यहाँ पे आपको दिखेगा कि माइलोजिनस ल्यूकेमिया इज कॉज्ड बाय रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन वेयर सम पार्ट ऑफ, ध्यान से इसको पढ़ना पड़ेगा कि वेयर सम पोर्शन ऑफ
long arm of a chromosome number 22. Some portion of long arm of a chromosome number 22 is deleted and moved onto chromosome number 9. Is it okay? क्रोमोसोम नंबर 22 से क्रोमोसोम नंबर 9 पे ट्रांसलोकेट होता है कौन सा सेगमेंट? तो लॉन्ग आर्म का कुछ हिस्सा। कौन से क्रोमोसोम के लॉन्ग आर्म का कुछ हिस्सा? क्रोमोसोम नंबर 22 के लॉन्ग आर्म का कुछ हिस्सा क्रोमोसोम नंबर 9 पे ट्रांसलोकेट होता है। अब डिसीज जो है उसमें होता क्या है? तो दिस डिसीज रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ excess granular leukocytes. If you remember, granular leukocytes मतलब इन्हें हम कह चुके हैं ग्रैन्युलोसाइट्स। WBCs का क्लासिफिकेशन हमने ऑलरेडी पढ़ा है, तो हम जानते हैं कि WBCs का एक टाइप है ग्रैन्युलोसाइट्स बिकॉज देयर साइटोप्लाज्म कंटेन वेरियस ग्रैन्यूल्स। तो इन ग्रैन्युलर WBCs, ल्यूकोसाइट्स मतलब WBCs, तो ग्रैन्युलोसाइट्स या ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स का संख्या या नंबर नॉर्मल से ज्यादा बढ़ता है। इसी कंडीशन को हम ल्यूकेमिया कहते हैं, राइट? हियर 22nd क्रोमोसोम whose little segment is deleted, मतलब जिस क्रोमोसोम का सेगमेंट डिलीट होता है उस क्रोमोसोम को, मतलब 22nd क्रोमोसोम को, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम अमेरिकन स्टेट ऑफ फिलाडेल्फिया में रिपोर्ट हुआ था, ठीक है ना, इसे हम कहते हैं फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। तो ये भी एक थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम इज अ नेम और टर्म यूज्ड फॉर क्रोमोसोम नंबर 22 whose small part is deleted and added on to chromosome number 9 because of this type of chromosomal aberration, that is translocation. The resultant disease is myelogenous leukemia. Is it okay? So these are the two main disorders that we need to discuss, which are caused due to chromosomal aberrations, that is Cry-du-Chat syndrome and myelogenous leukemia. Is it okay? इससे पहले हमने जो डिसऑर्डर्स पढ़े वो सब जीनोमैटिक म्यूटेशंस या एनिप्लॉइडी की वजह से होने वाले थे। ये जो दो डिसऑर्डर्स है ये क्रोमोसोमल अबरेशंस की वजह से होने वाले हैं, ठीक? इसके बाद जो हम पढ़ेंगे उनका रीजन होगा जीन म्यूटेशन, जिन्हें हम कहते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, जो किसी पर्टिकुलर जीन में आने वाले डिफेक्ट की वजह से होते हैं। इसको एक बार फिर से समझो कि अभी तक जो डिसीजेस हमने पढ़े वो जीन में होने वाले डिफेक्ट की वजह से नहीं थे, क्रोमोसोम के नंबर में या क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में आने वाले चेंज की वजह से होने वाले डिसीजेस थे। इसके बाद जो हमने पढ़ने हैं वो डिसऑर्डर्स किसी पर्टिकुलर जीन में आने वाले डिफेक्ट की वजह से होते हैं, इसीलिए हम उन्हें मेंडेलियन डिसऑर्डर्स या डिसऑर्डर्स ड्यू टू जीन म्यूटेशन कहेंगे। बट बिफोर वी मूव ऑन टू देम, just have a proper look at these two. Now the next heading that you can clearly see on the board, human genetic disorders due to gene mutations, or we also call them Mendelian disorders. The reason behind calling them Mendelian disorders is Mendel gave the term factor, and now the same factor is termed as gene. Just recall a definition of a gene before we move on to next things. जीन क्या है? हमने कई बार इसको प्रीवियसली भी मेंशन किया है, फिर से एक बार करते हैं। जीन और Mendel's factor is nothing but a particular segment of DNA slash chromosome which is
responsible for expression of certain character। किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल डीएनए के पर्टिकुलर सेगमेंट को हम जीन कहते हैं। अब सोचो, अगर ये एक सेगमेंट है डीएनए का रैंडम, जैसे हम निकाले ATGCATA, तो हम समझ सकते हैं कि नीचे क्या आएगा, TACGTA, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है। तो सपोज करो कि ये कोई जीन है, राइट। अब ये नॉर्मल जीन है, नॉर्मल जीन मतलब जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। तो ये जब एक्सप्रेस होगा तो नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक प्रोड्यूस होगा। लेकिन सपोज करो कि नॉर्मली जिस पोजीशन पे जीसी बेस पेयर होना चाहिए वहां पे एटी आ जाए। अब ये कैसे आता है, दिस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। वी विल सी इट सेपरेटली अंडर द हेडिंग जीन म्यूटेशन, जो हमने छोड़ा है क्योंकि वो इस चैप्टर में नहीं पढ़ाया जा सकता। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, लॉजिकल बात है कि जीसी जो नॉर्मली होना चाहिए उसकी जगह अगर एटी आया, या किसी जगह पे एटी नॉर्मली होना चाहिए जिसकी जगह जीसी आया, तो बनने वाला कैरेक्टर नॉर्मल की जगह डिफेक्टिव कैरेक्टर प्रोड्यूस होगा, मतलब शायद कोई डिसीज प्रोड्यूस होगा। तो ऐसे जो डिसीजेस है या ऐसा जो डिफेक्टिव कैरेक्टर है जिसके डेवलप होने का रीजन किसी नॉर्मल जीन के नॉर्मल सीक्वेंस में आने वाला चेंज है, जिसे हम टेक्निकली जीन म्यूटेशन कहते हैं। अगर ऐसे डिसऑर्डर्स है कोई, तो इन तरह के डिसऑर्डर्स को हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स या ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स ड्यू टू जीन म्यूटेशंस कहते हैं, राइट। इनमें क्रोमोसोम का ना नंबर चेंज होता है ना क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज होता है। अगर चेंज होता है तो वो है किसी पर्टिकुलर जीन का नॉर्मल सीक्वेंस। इज इट ओके? दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर इन अवर माइंड। नाउ जस्ट लुक एट सम बेसिक थिंग्स। पहला पॉइंट क्या दिखता है हमें, these are those disorders which are caused due to mutations in single gene, as they are transmitted to the next generation as per Mendelian principles. They are called Mendelian disorders. As we already know कि अगर कोई जीन है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, और अगर वो डिफेक्टिव है तो नेक्स्ट जनरेशन में भी डिफेक्टिव ही जाएगा। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, क्योंकि इनहेरिटेंस ऑफ द जीन के बारे में जानकारी जो है हमको सबसे पहले मेंडल ने दी। वी therefore call him as the father of genetics. That's the whole sole reason why we call these disorders as Mendelian disorders. Then the patterns of these type of disorders can be traced in pedigree analysis. हम देख चुके हैं पेडिग्री एनालिसिस की डिटेल्स कि हम उसमें जीन्स या जीन की वजह से होने वाले डिसऑर्डर्स को ट्रेस कर सकते हैं, चाहे वो ऑटोसोमल हो या सेक्स लिंक्ड हो, डोमिनेंट हो या रेसेसिव हो, कुछ बेसिक रूल्स को यूज करके। देन these disorders can occur due to mutations in autosomes as well as sex chromosomes, क्योंकि जीन्स तो दोनों ही क्रोमोसोम्स पे है, ऑटोसोम्स पे भी है और सेक्स क्रोमोसोम्स पे है। तो म्यूटेशन तो किसी भी जीन में हो सकता है, राइट। और वो डोमिनेंट भी हो सकते हैं और रेसेसिव। अगर डोमिनेंट है तो हम ऑटोसोमल डोमिनेंट या सेक्स लिंक डोमिनेंट कहेंगे, रेसेसिव है तो ऑटोसोमल रेसेसिव या सेक्स लिंक रेसेसिव कहेंगे। पेडिग्री एनालिसिस में हम इसकी जानकारी ले चुके हैं। यहाँ हमारा फोकस रहेगा डिसीजेस पे। तो आप दोनों को कंबाइन करके सोचो कि यहाँ जो डिसीजेस हम पढ़ेंगे उन्हीं डिसीजेस को ट्रेस करते हैं हम पेडिग्री एनालिसिस को यूज करके। गेटिंग द थिंग? जस्ट हैव अ लुक एट दीज 3 पॉइंट्स. We will see all the disorders that are important for us one by one. Okay, so
the first disorder that we are going to consider is alkaptonuria. Get the term correct, alkaptonuria. Is it okay? Now the first line, the very important thing is mentioned in the first line itself. It is an autosomal recessive trait. अब यहाँ से हमको एक बात क्लियर कट समझ में आनी चाहिए कि अल्कैप्टोन्यूरिया इस डिसीज को कॉज करने वाला जीन सेक्स क्रोमोसोम्स पे नहीं है, ऑटोसोम्स पे है और बाय नेचर रेसेसिव है। अब यहाँ पे समझो कि सपोज हम कंसीडर करें कि X कैपिटल P is a normal gene and small p causes alkaptonuria और स्मॉल p का नेचर कैसा है, रेसेसिव, राइट। तो पर्सन को अल्कैप्टोन्यूरिया कब होगा, उसके पास 2 ऑटोसोम्स है हर पोजीशन पे। तो अगर एक क्रोमोसोम पे कैपिटल P है और दूसरे पे भी कैपिटल P है तो ये पर्सन पूरी तरह से नॉर्मल होगा, क्योंकि उसमें डिसीज कॉज करने वाला अलील ही नहीं है। अगर इसके एक क्रोमोसोम पे कैपिटल P है और दूसरे पे स्मॉल p है, अब स्मॉल p है जो डिसीज कॉज करता है लेकिन नेचर कैसा है, रेसेसिव, तो फिर ये पर्सन कैसा होगा, कैरियर। मतलब इसको खुद को अल्कैप्टोन्यूरिया नहीं होगा, बट ये अल्कैप्टोन्यूरिया कॉज करने वाला अलील अपने अंदर कैरी जरूर करता है, दैट्स व्हाई कैरियर। और अल्कैप्टोन्यूरिया होने के लिए उस पर्सन में कौन सी सिचुएशन होना जरूरी है, स्मॉल p, देन ओनली द पर्सन will have a disease that is alkaptonuria. That's what the thing to understand. Because it is an autosomal recessive trait, this condition, small p condition, is only condition that will cause alkaptonuria in a person. Is it okay? Then description में आगे क्या लिखा है कि it's a kind of metabolic disorder which occur due to deficiency of oxidase enzyme. Now you need to remember this. The reason behind alkaptonuria is deficiency or absence of an oxidase enzyme, जो किस चीज के लिए लगता है, एक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट जिसका नाम है होमोजेंटिसिक एसिड या अल्कैप्टॉन, ठीक है ना। इस अल्कैप्टॉन या होमोजेंटिसिक एसिड के ऑक्सीडेशन पर्पस के लिए जो एंजाइम चाहिए, उस एंजाइम को बनाने वाला जीन अगर अब्सेंट है तो उस वजह से इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी और इस डेफिशिएंसी का रिजल्टेंट इफेक्ट अल्कैप्टोन्यूरिया ये डिसीज है, ठीक। इस पर्टिकुलर डिसीज में क्या देखा जाता है, तो हियर देयर इज अ अक्यूमुलेशन ऑफ अल्कैप्टॉन और होमोजेंटिसिक एसिड बिकॉज इट इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड इन टिश्यूज एंड यूरिन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अल्कैप्टोन्यूरिया। यूरिया इज रिलेटेड टू यूरिन। द मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड टिश्यूज इस पर्टिकुलर डिसीज में सबसे ज्यादा इफेक्ट अगर किसी बॉडी पार्ट पे होता है तो वो है कार्टिलेज, जॉइंट्स, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। मतलब ओवरऑल हम कहें कनेक्टिव टिश्यू पे। इज इट ओके? देन सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो हमको इस डिसीज में देखने को मिलता है कि यूरिन ऑफ दीज इंडिविजुअल्स इफ अलाउड टू स्टैंड फॉर फ्यू आवर्स, मतलब पर्सन के यूरिनेट करने के बाद उस यूरिन को अगर थोड़ी देर के लिए स्टेबल रख दिया जाए तो इट टर्न्स ब्लैक, उसका कलर चेंज होता है। उसका रीजन है एयर में प्रेजेंट नेचुरल ऑक्सीजन द्वारा उस यूरिन में प्रेजेंट अल्कैप्टॉन या होमोजेंटिसिक एसिड का होने वाला ऑक्सीडेशन जो बॉडी में नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ deficiency of oxidase enzyme. So this is what you see in alkaptonuria. Have a look at it once. Reason पता होना जरूरी है और ये नेचर पता होना जरूरी है, ऑटोसोमल रेसेसिव। तो एक
बात हम यहाँ पे फिर से समझे कि ऑटोसोमल रिसेसिव दिख रहा है ना, तो एक बात फिर से दिमाग में आनी चाहिए हमारे कि हमने पेडिग्री एनालिसिस में ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट को आइडेंटिफाई करने के लिए नियम पढ़े हैं। अब अगर तुमको शक है कि किसी पेडिग्री में अल्केप्टोन्यूरिया ये डिसीज है, या तुमको दिया है कि भाई ये गिवन पेडिग्री अल्केप्टोन्यूरिया की है या नहीं, ये पहचानो, तो तुम कौन से नियमों का वहां पे एप्लीकेशन करोगे? तो यू नीड टू अप्लाई द रूल्स दैट आर फॉर ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट, जैसे कि जनरेशंस का स्किप करना, दोनों सेक्सेस में बराबर बराबर दिखना, प्रोजेनी अफेक्टेड होना बट पेरेंट्स में से कोई भी अफेक्टेड ना होना, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है, राइट? सो ऑल दिस थिंग्स यू नीड टू अप्लाई।